Hello, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Welcome to yet another live TVC Virtual Awards के आप देख रहे हैं कि हमारे साथ होस्ट हैं जो कि जज भी हैं, पैनल जज हमायूं, और इसके अलावा हमारे आज की नॉमिनी हैं, उनके बारे में आपको ये बता दूं कि you've seen him on television a lot. He's a journalist and nominated in the category of the best journalist. और इनका current affairs का program चलता है on Sama TV, so he's also a TV host. So I'd like to welcome Syed Ali Haider. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Sadia. Thank you so much, and walaikum assalam, assalamu alaikum to Humayun as well. I'm really honored. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है because the day I heard about those virtual awards, I was excited. Or it's an amazing opportunity for all those aspiring people in different professions. Maybe it's journalists, maybe singers, maybe other professionals. So it's a very good initiative. Thanks to you, thanks to Humayun as well. I'm really feeling honored and humbled to be a part of it. It's an absolute pleasure to have you here, and I'm just going to put my glasses on so I can see everything a lot better. So it's thank you for giving your time today. I know कि आप busy होते हैं, आप shows भी करते हैं, and it's really lovely to have you here. अब ये भी है कि we would like to get to know you as well. So अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग join in भी हो रहे हैं, सारा माजिद सलाम दे रही हैं, शाहिद मलिक भी हैं, और so Ali, tell us about your journey कि आप how did you get into journalism and किस तरह से आपका ये television के साथ आप अपना रोलर कोस्टर जोन सा वो हमें बताएं कि किस तरह से सब चीजें स्टार्ट की. Okay. Let's go in a brief recap. Hawaii, it started around like 12 years ago, and it was a very funny thing the way it started, because I opted journalism as a major in my university, because मुझे कहा गया यार, if you want to get done with the university in a good grades, तो ये बड़ा आसान है, मतलब you can easily do it. I said okay. I had not in my far-fetched dream that I'll end up being a journalist myself. So I opted journalism कि यार अच्छा easy है, तो I'll get good grades and I'll get good marks. Let's do it now. तो मैंने जब कर लिया, उसके बाद I started doing my own business, but I had not ever thought about it that I'll be a broadcast journalist. Well, somehow business didn't work, and उसके बाद जब पाकिस्तान में मीडिया बूम आ रहा था in mid 2006-7 till जो है वो 10 तक जो है, the industry was booming, and they were recruiting new faces, they were recruiting new people. And someone told me that yaar, they're auditioning in a certain channel, तो यार तू भी यहाँ पे चला जाए and go and audition for yourself. So I was young at that time. I was not this like at that time, so I just went there. ठीक है यार, let's give it a shot. So it worked. It clicked. उनको हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है यार तुम आ जाओ. We won't pay you a penny. हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम वैसे आ जाओ. I said okay यार, मतलब ठीक है. आप ये भी बहुत होता है. You're coming on TV and you're a broadcast journalist, और आपका वो. And I wasn't paid for a year, I guess. Uske baad they started paying me like 5,000 a month, and I'm like, okay, I don't care if you pay me like 5,000 a word, but it's going well. But again, yes, it was tough, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हो, आप जिसको पढ़ रहे होते हो, things are fine, but जब आप practically जाते हो किसी चीज में, तो फिर आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है. A lot of hurdles, lot of obstacles that come in your way. But on the whole, it was fun. I love my job. I truly believe that until or unless you don't love your job, you don't love what you're doing, you can't excel in it. So I love what I do, और मुझे बहुत मजा आता है, और I enjoy it. So अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो गए हैं, 12 सालों में यहाँ तक पहुंचे हैं. Let's see अगले 12 साल कहाँ तक लेके जाते हैं. तो आपने स्टार्ट किया था C42 से, right? No, I started with Channel 5. खबरें न्यूज, if you heard the news. बिल्कुल, खबरें न्यूज से. यस, बिकॉज मुझे इसलिए ये चैनल की हिस्ट्री का पता है क्योंकि मैंने जियो ज्वाइन किया था 2003 में से लेके टिल 2011 तक. सो उसके बाद से ये चैनल्स आ रहे थे और वो सब चीजें हो रही थी. तो वो मैं आपको भी देख रहा था कि आपने, अच्छा ये मुझे ये नहीं पता था कि आपने चैनल 5 से भी स्टार्ट किया था. मुझे था कि C42 से आपने किया था. It's Channel 5, then Din News, then Express News, जहाँ से मैं 2 दफा रिजेक्ट हुआ कि नहीं यार तुम सही नहीं कर रहे हो. फिर मैं जब हो गया तो उसके बाद एयर के बाद समा के बाद 24 न्यूज, देन डॉन न्यूज, देन नियो टीवी. लेकिन आप होस्टिंग में क्यों आए? माशाल्लाह से आप स्मार्ट हैं, आपको तो एक्टिंग में जाना चाहिए था या मॉडलिंग में जाना चाहिए था. आप होस्टिंग में कैसे आ गए? आई मीन ये न्यूज, ये तो काफी बोरिंग सा एक है मुझे लगता है जनरली.
लोग इसको लेते हैं। सर दुख की लेकिन बात तो है डेफिनेटली ये आप आप। अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को जिस तरह से आप इन्वॉल्व करते हैं, आपका जो वे है, जो इंटेलेक्चुअल वे है, जिस तरह से आप चीजों को डिस्क्राइब कर रहे होते हो, मतलब वो एक अच्छी है। बट आपने क्यों डिसाइड किया कि आपने जर्नलिज्म में ही आना है? Yeah, okay. It's this is something which is close to my heart. This question because हम्म, I want to be an actor at some point of life. At some point of life, I wanted to be because मेरी जो university है, it's Government College University Lahore GCU. तो वहाँ का जो dramatic club है, it's one of the most famous dramatic club जिससे बड़े अच्छे अच्छे actors जो है वो मदिहा गौहर जैसी actors जो है वहां से निकली हुई थी। तो मेरा शौक था and I used to act. I used to take part in different plays in Bukhari Auditorium. I wanted to be an actor, but again somehow हुआ ही कि I would be honest क्योंकि हर काम को इनिशिएट करने के लिए खास करेज चाहिए होती है। आई थिंक आई वाजंट करेजियस इनफ टू टेक दैट रिस्क। आपको एक खास किस्म का रिस्क लेना होता है। somehow हुआ ही कि ऑडिशन स्टार्ट हुए। आई went there for an interview. I got selected. And then I thought, मुझे मेरे जहन में कहीं बैठ गया कि this is what I am for. मुझे यही करना चाहिए। This is I am good at. वो जो एक्टिंग करियर था उसको मैंने कहीं फरामोश कर दिया, जो कि मुझे कभी कभी एहसास होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। आई वुड हैव एक्सेल्ड डेफिनेटली, मुझे ऐसा फील होता है। बट उसको जब मैंने फरामोश कर दिया, बट लेटर आई फाउंड आउट कि ये भी जो मैं ये कर रहा हूँ कि दिस इज गुड, दिस इज लेकिन व्हाट आई एम। अभी देख के लग रहा है कि आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो इतना अच्छा कर रहे हो माशाल्लाह से, टचवुड। और आप इसी थैंक तरह यू इस सो चीज को मच। करते रहें। जी सादिया। Yeah, I'd like to add to that. You know, it's never too late. आप हमेशा एक काम अगर कर रहे हैं, you've made a mark in that industry, लेकिन फिर भी you can always move into acting at any stage. I think I don't know, somehow I find के to be an anchor and to be an actor थोड़ा सा इसमें फर्क है, because as an anchor you're being yourself. आप whatever you're giving out is who you are, whereas obviously आप character करते हैं जब आप acting करते हैं. So is that something that you think in the new future you're going to try acting? If I would be given an opportunity, I would love to. I mean, I won't say no to it. This is yeah. If and even I have friends in showbiz. I mean, when you are working with the media industry, you people know each other. I have friends in showbiz. Even my brother-in-law, he's a drama director. I mean, I would love to once in a while if I would be given an opportunity. I won't say no to it. I won't say that no, that I'm not made for it. Yes, I think that I can. I can prove myself in that very particular area as well. So I would say no. I'm up for it. यानी आप अपनी सेल्फ को प्रूव कर सकते हैं एक्टिंग में भी। I think so. मतलब कि होता पता है क्या? I would love to be. I would love to try. Give it a shot. मुझे पता है हो सकता है मैं नाकाम हो जाऊं। लोग के यार क्या पंगा लिया था इसने फजूल का, छोड़ो यार, मतलब अली तुम अच्छे खासे एंकर हो। बट इतना कुछ फर्क भी नहीं होता एंकर और एक्टर में। ऑन अ लाइटर नोट हम भी कभी कभी एक्टिंग ही कर रहे होते हैं बैठ के। बट द थिंग इज कि या आई वुड गिव इट अ शॉट। मैं इसको मना नहीं करूंगा। अगर हाँ कुछ जर्नलिस्ट का रोल मिल गया तो मैं बहुत अच्छा करूंगा। आई इट विल कम नेचुरली आउट ऑफ मी इफ आई वुड बी गिवन सच अ रोल। Okay, you need to unmute yourself, Mayur. सादिया आपका माइक ऑफ I'm है। trying. I'm trying. I was saying that girls get ready. Ali, you very soon आप देख सकते हैं Ali को acting के roles में भी. So that would be amazing. So tell us Ali a little bit about yourself. आप what do you like as a person? क्या hobbies हैं आपकी? क्या शौक है? Music सुनते हैं? Movies का शौक है? What do you like doing? Okay, this is the part where I जहाँ मुझे लगता है कि मैं जो है मुझे मुझे वहां जाना चाहिए था। I would have been part of showbiz. I would have been part of movies or drama industry because I love watching movies. I love not only listening to music, I love playing music. I learned tabla when I was in GC. और उसके बाद मैं अपनी डिबेटिंग सोसाइटी में कम होता था, मैं म्यूजिक सोसाइटी में ज्यादा होता था। सो आई एम अ पर्सन हु एडमायर टैलेंट। मतलब मुझे किसी भी फनकार के साथ बिठा दो तो मैं शायद घंटों बैठ कर उसका सर खाता रहूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी भी आर्टिस्ट के साथ बैठना। मुझे अच्छा लगता है, मे बी सिंगर, मे बी एन एक्टर, मे बी एन आर्टिस्ट, एनीवन हु इज हैविंग अ स्किल इन अ सर्टेन फील्ड। तो वहां मुझे अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना भी अच्छा लगता है मुझे। मेरी मेरी ख्वाहिश है कि कभी मैं म्यूजिक सीख सकूं। एज कभी कभी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मैं हारमोनियम सीखूं, मैं म्यूजिक सीखूं, मैं और कोई इंस्ट्रूमेंट सीखूं।
और या आई लव प्लेइंग वीडियो गेम्स, मुझे बहुत पसंद है। मैं दिन में हफ्ते में 1-2 दफा PS के ऊपर बैठ के अच्छा खासा टाइम देता हूँ। अच्छा, ये सारे वो शौक है जो जर्नलिस्ट को नहीं होते हैं। जर्नलिस्ट सारा दिन लाइब्रेरीज में घुसे रहते हैं। या आई डू स्टडी बिकॉज दिस इज व्हाट माय JD इज, मुझे पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। बट वो एक होता है ना कि होल हार्टेडली आप ये काम कर रहे थे कि वाओ लाइब्रेरी, तो मुझे लाइब्रेरी को देख के ऐसा फील नहीं होता। या इफ यू कम अप विद यार ये एक नई मूवी आई है, लेट्स गो टू थिएटर, और दिस इज द न्यू PS वीडियो गेम अब आ चुकी है, लेट्स प्ले टुगेदर, आई वुड बी लाइक वाओ लेट्स गो फॉर इट। तो या दिस इज व्हाट आई डू। आई लव वर्किंग आउट, आई लव गोइंग टू जिम, मुझे अच्छा लगता है वर्कआउट करना, आई लव टू डू दैट। आई बिलीव कि हर आदमी को इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड जेंडर वन शुड बी फिट एंड हेल्दी इनफ। अच्छा, इसमें एक चीज मैं सादिया आपके लिए और बाकी लोगों के लिए भी मैं ऐड करना चाहूंगा। माशाल्लाह से अली की बहुत खूबसूरत फैमिली है, इसकी ये बड़े लविंग हस्बैंड हैं, इनकी 2 बेटियां हैं। और अगर आप इनको कहीं पे भी इवन गूगल्स पे भी आप जब इनको सर्च करते हैं ना, तो इनका जर्नलिज्म तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये अपनी फैमिली के साथ कितने कनेक्ट हैं, हमको कितना से सोशलाइज करते हैं। क्योंकि मैंने जितना अली को देखा है, ये बिल्कुल अपनी वाइफ के साथ फ्रेंड की तरह ये सोशलाइज कर रहा होता है, शादियों पे भी जा रहा होता है, डिनर पे भी जा रहे होते हैं, ऐसे ही है मेरे ख्याल में। सो माशाल्लाह ये जो दूसरा पार्ट है उसमें भी ये परफेक्ट है। Mashallah, that's really good. That's really good because you have to take your family along, I believe, and it's credit to you. अच्छा, मुझे अली ये भी बताइए कि आजकल obviously आपके current affairs के shows हैं. What is the current hot topic at the moment in your most of your shows? देखिए अगेन अभी करंट टॉपिक जो पॉलिटिकल चल रहा है वो ऑपोजिशन की एक मूवमेंट है व्हिच दे हैव स्टार्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट व्हिच इज PDM। इट्स गोइंग ऑन, लेकिन उसके सामने एक चैलेंज है जो कि हमें भी एक फेस करना पड़ रहा है, दैट्स कोविड। कोविड इज देयर एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू स्टे सेफ, और उसमें जितनी भी पॉलिटिकल मूवमेंट है वो भी सैबोटाज होकर रह जाती है। सो मैं समझता हूँ इस वक्त करंट अफेयर्स का और हमारी जिंदगी का मतलब इट शुडंट बी अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर कि आपने टेलीविजन पे सुन लिया अ न्यूज रिगार्डिंग कोविड, यू शुड बी worried about it कि कोविड है, इट्स राइट आउट देयर, इट्स देयर फॉर यू टू हार्म यू। तो अगर हम नहीं भी बताते मीडिया पीपल, इफ यू नॉट टेलिंग यू कि यार कोविड है, वी शुड बी, यू गाइस आई थिंक शुड बी गिविंग दिस मैसेज कि हाँ यार कोविड है, वी शुड बी सीरियस अबाउट इट। तो आई थिंक इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कोविड एंड प्रिकॉशंस टू बी टेकन। तो मेरे ख्याल इस वक्त ये चल रहा है और हमें भी इसी पे बात करना पड़ रही है। Absolutely. Actually, I'm just gonna welcome a few more people. So Seher Naseem Qureshi, hello, bol rahi hain. Hi Seher, how are you doing? Sarah is saying, great efforts. I admire that Ali started off with hardly any money and has proved himself as a great journalist. So yes, she's got praise for you and very talented person and wonderful, mashallah. She's saying Syed Yasir Abbas salam de rahe hain sabko. Shaji keh rahe hain aapko. So nice to see you here, Yasir. Thank you for joining today. Okay. अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करूंगा अली, जिस तरह आप बता रहे हो कोविड के बारे में, क्योंकि अभी हम एक पॉलिटिकल इश्यूज को भी साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो हमारी पाकिस्तान की अपोजिशन है वो बिल्कुल भी जो आपकी गवर्नमेंट है उसके साथ नहीं तावन कर रही कि आपको जलसे नहीं करने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। मेरे ख्याल में वहां पे सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि लोग भी शायद उसको अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं फजलुर रहमान का एक दिन वो मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि जी आप जब सोते हो तो वायरस भी सो जाता है, जब आप उठते हो तब वायरस उठता है। आई मीन समथिंग कुछ लाइक वो इस तरह की वो बात कर रहे थे। तो ये हमारे पॉलिटिशियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इस सिचुएशन में लोगों को एजुकेट करें। एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री हुमायूं, बिकॉज देखिए अगर लीडर सिंसियर नहीं, अगर लीडर सीरियस नहीं ले रहा किसी चीज को, इफ लीडर इज नॉट वेयरिंग अ मास्क, सेम हैपेंड विद डोनाल्ड ट्रम्प। ट्रम्प वाजंट वेयरिंग अ मास्क, ही मेड अ मॉकरी ऑफ इट, सो मोस्ट ऑफ पीपल डिडंट टेक इट सीरियसली एंड दे एंडेड अप बीइंग इन हॉस्पिटल। अल्लाह ना करे ऐसा हो यहाँ पे। बट इनिशियली आप ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, ट्रस्ट मी सादिया एंड हुमायूं, गवर्नमेंट ने भी, इवन आवर प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी वो संजीदगी का मुजाहरा शुरू में स्टार्ट में नहीं किया गया था, which landed people into trouble कि मास्क नहीं पहना करते थे, कहते थे ये तो बस, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था इट्स जस्ट अ फ्लू। तो इट वाज समथिंग व्हिच he should have said earlier. ऑपोजिशन को अब ये लग रहा है कि कोविड इज अ प्रीटेक्स्ट। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा था, ये आपके पंजाब के गवर्नर ने कहा था।
उन्होंने भी कहा था, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का आपको दिखवा दूंगा, एक मेरे पास Please send may you I that. add, ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था. So you know, Exactly. said. Exactly. So like-minded Yeah. people are there, they think alike. और माशाल्लाह से तो थिंग वाज के जहां जिसको सूट करता है वो कोविड को इस्तेमाल कर रहा है. गवर्नमेंट ने जीबी में यानी गिलगित बल्तिस्तान में जलसे करने थे, उन्होंने कोविड में जलसे किए. अभी 3 दिन पहले फैसलाबाद में जलसे किए. जब गवर्नमेंट की जलसे खत्म हो गए तो अब कहा कि ओहो हो अब तो कोविड आ गया, अपोजिशन को चाहिए अपने जलसे पोस्टपोन कर दे. दिस इज नॉट supposed to be. अगर आपने एक चीज को implement करना है, it should be across the board. It shouldn't be selective to opposition or certain group of people. Opposition should be responsible enough. मैं आपको बड़ी मजे की चीज बताता हूँ अभी. I know this is not a platform for political discussion, but this is something important. अभी हाल ही में बख्तावर साहबा की मंगनी जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो कॉल ऑफ कर दी जाए क्योंकि वो 27 नवंबर को होना थी. रीजन बाय बीइंग इज बिलावल साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी को कोविड हो गया है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे. मगन और बिलावल साहब ने खुद को क्वारंटीन कर लिया फॉर 14 डेज. तो आपकी जब खुद पर आई आपने मंगनी तक कैंसिल कर दी, मगर जब आपको जलसे करने थे आप लाखों अवाम को जलसे में बुला रहे थे एंड दे वर यू वर पुटिंग देयर लाइफ टू स्टेक्स जस्ट फॉर योर ओन पॉलिटिकल रीजंस. दिस शोज हाउ मीन these politicians can be. तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ ऑपोजिशन की ये हरकत सुन के. और आई थिंक दे शुड बी मोर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स पीपल्स लाइव्स. जी बिल्कुल, I totally agree with you. I think initially जब कोविड आया था, people didn't realize it was a pandemic. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता it started to, जिस तरह के यूरोप में सबसे पहले बहुत ज्यादा we heard cases after China of course. लेकिन अभी I think के अब हमारा तो यहाँ यूके में इस वक्त उसका second round चल रहा है ना. So अभी it's at the peak और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें we're in a second lockdown. बट अब ये हो रहा है कि जगह जगह जो है वो उस हिसाब से लॉकडाउन करें जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं. सो आई थिंक मे बी दैट्स समथिंग गवर्नमेंट्स आल्सो नीड टू टेक इनटू अकाउंट. आई डोंट जो स्मार्ट लॉक की जो एक डेफिनेशन है बेसिकली वो कर रहे हैं ना, जहां पे भी उनको लगता है वहां पे वो लॉकडाउन कर देते हैं जैसे पाकिस्तान में हो रहा है. Yeah, it's the right strategy. ऐसा ही होना चाहिए. People can't afford to lose their jobs anymore now. They can't afford to lose their businesses because they've already gone through a lot. एक financial जो crunch आया है, which is unrepairable till now. People are still struggling to get back to lives, to get back to normal financial position. So अब दोबारा अगर blanket lockdown अगर दोबारा लग जाता है and businesses are closed. So I think the financial backlash that people have to face, it will be irreparable. They won't be able to survive that. COVID se shayad bach jaye, but they won't be able to survive the financial crunch next. So I think it should be selective. It should be, the SOPs should be implemented in letter and spirit. It should be made possible that everybody gets to work under certain conditions. Otherwise, businesses को सील किया जा रहा है. कराची में, इस वक्त में कराची में एक बहुत बड़ा यहाँ पे शॉपिंग मॉल है, huge shopping mall. I won't name it. Everybody knows it. उसको कल परसों की बात है उसको सील किया गया because they weren't following the SOPs. So I think this should be done. You should implement the law, but I am totally against the blanket lockdown. It will put people into financial shambles. This is not right at the right moment, I guess. Of course, I mean यहाँ पर यूके में गवर्नमेंट्स जो हैं they're supporting people, furlough है, the people who are not going to work उनकी I mean we're not talking about the essential workers, but other than that उनको 80% wages उनकी मिल जाती हैं just sitting at home. ऐसे कुछ नहीं लगता, ऐसे पैसे कुछ नहीं लगता, ऐसे राशन भी नहीं लगता, खा जाते हैं सारे. इसलिए भी I think the government in Pakistan is reacting in that way कि ठीक है हम तो नहीं कर सकते, तो जो भी है get along with it. And people, I think ये awareness ज्यादा होनी चाहिए कि किस तरह से आपने अपने आप को और बाकी सबको safeguard करना है during this time. मेरे ख्याल में इसमें हम गवर्नमेंट से ज्यादा अगर हम खुद से इनिशिएटिव लें कि हमने अपने आप को कैसे सेव करना है, अपने घर वालों को कैसे सेव करना है, अपनी सोसाइटी को कैसे सेव करना है. मेरे ख्याल में ये जो सा वायरस है ये आपसे शुरू होता है, फिर आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, फिर आप पूरे वर्ल्ड को सेव करते हो. This is your savior. Use this. My message is okay. We can't stop meeting people. We have to go out for work. We have to go out for other things as well. This. This is the new. This is new. This is your part of face. Make it a part of your face, dude. Yeah, this is your new face, basically.
a new word as well. Exactly. और ये जो अभी जी साथिया, मैं कहती कि social distancing. So when you are with even your near and dear ones, I mean, I don't live with my mom, लेकिन I haven't hugged her since COVID. You know, I just feel कि she's in the vulnerable category, और मुझे ऐसा लगता है कि I don't need to be too close to her. एक distance से हम बात करते हैं. To be honest, even my children, मैं ज़्यादा दूर से कहते हैं अच्छा बस ठीक है, you know, because I don't want to get that close. Everybody's out. हम सब बाहर जाते हैं, बच्चे भी काम करते हैं. So I think social distancing is the key word, as well as of course face masks या face coverings जो आप पहने. जी. बट साथिया मैं इसमें एक चीज करूंगा कि ये जो सोसाइटी है ना, ये दिस इज नॉट ह्यूमन सोसाइटी. ह्यूमन सोसाइटी या सोसाइटी का मकसद क्या होता है कि हम इंटरेक्ट करते हैं, अगर कोई बीमार है उसकी हेल्प करते हैं, कोई भूखा है उसको, बस आप उसके पास जाते हो. लेकिन अब जिस सोसाइटी में रह रहे हो यहाँ आप किसी से शेक हैंड नहीं कर सकते, आप 2 मीटर डिस्टेंस है तो आप उसकी हेल्प क्या करेंगे? सो दिस इज टोटली डिफरेंट वर्ड. The word after COVID, मैं एक बात अक्सर करता हूँ कि एक था BC, एक था AD, then came 9/11, and now it's going to be after COVID word. मतलब ये 4 जमाने हो चुके हैं. पहले 2 जमाने थे, BC और AD, फिर 9/11 के बाद दुनिया बदल गई. Now after COVID, I think it's going to be a totally different. The way of living we used to have, it's not going to be the same. It's going to get totally different, and we need to learn to live with it. हमें problem पता क्या आ रही है? We're trying to live before COVID life, which is not possible anymore. We need to understand that the life is not going to be same anymore. We need to live with this. We need to live with different norms. अब हुआ क्या? अब there is a particular term in Pakistan. I don't know whether it's there in UK or somewhere else. It's a COVID wedding. It's a COVID birthday. People else have started using this term, and I think it's good that they have started realizing that okay, a particular way of living has changed. Now everything is being associated with COVID. It's a COVID lunch. It's a COVID dinner. It's a COVID wedding. It's a COVID birthday. It's a COVID funeral as well. My God, this is scary. People have started managing their funerals. Those who have left them. I think अली का थोड़ा सा और इसमें साथिया, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि जिस तरह भी अली बता रहा था कि सब चीजें डिफरेंट हो गई हैं, एक डिस्टेंस है. अगर हम अपने जो टीवीसी अवार्ड्स हैं इनको अगर हम डिस्कस करें, ये भी उसी का ही एक पार्ट है, क्योंकि आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते. अब ये सब चीजें ऑनलाइन चल रही हैं, और ये सादिया ने जो एक ये वर्चुअल अवार्ड्स का जो एक ब्रिलियंट आइडिया क्रिएट किया है, ये आप देखिएगा कि बहुत जल्द जो बड़ी कंपनीज है वो भी इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप गैदरिंग कर ही नहीं सकते, आप लोग इकट्ठे हो ही नहीं सकते. तो इसी तरह से अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? I can't hear you right now. I think there's some audio problem. Okay, no problem. Just fix it. It is. हाँ, no problem. तो साथिया, आप क्या कहोगे इसके बारे में? यानी हमने स्टार्ट कोविड में ही किया था ये टीवीसी अवार्ड, देन उसके बाद फिर हम लोगों ने करते 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 आज चीज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये चीज कर रहे हैं, और ये सारा कोविड से ही के बाद से ये चीजें. अगर कोविड ना होता तो शायद the chat and I'll join you in again, like in 2 minutes. Okay. Yeah, I think I have to leave the chat for now. Okay, sure. जी साथिया, बोले आप. Okay, so this idea came about. ये आपकी बात सही है कि ये कोविड की वजह से जो हम इतना सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं in so many ways. So पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लाइव करने शुरू किए थे. Of course we have a group and a page. So page से, because page is public. तो उसके बाद से मुझे ऐसा फील हुआ कि you know we need to do something because everybody is depressed, everybody is like going through stuff. ऐसा टाइम हम सब पर आया हुआ है कि हर कोई जो अपने घरों में भी बैठा हुआ है. तो it was just something that I thought of, and आप ही हैं पहले बंदे जिनके साथ ये आइडिया Exactly. और रिमेम्बर के हम लोग जब ये तुमने अपना नहीं बनाया था, कोविड की मैं बात कर रहा हूँ कि जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग जूम के थ्रू सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे और हम लोग बात कर रहे होते थे.
सो वो बड़ा एक डिप्रेसिंग सा टाइम था कि आप घर में रहते हुए भी अपने घर वालों से ठीक तरह से बात नहीं कर सकते थे, जो है वो अपने रूम में है। फिर तुमने ये चीज शुरू की और माशाल्लाह वो फिर लोगों को स्पेशली इस सिनेरियो के अंदर के जहां पे आप कहीं जा नहीं सकते, कोई आपके घर आ नहीं सकता, तो आप एक जगह पे बैठकर आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। सो जी अली। जी Gee, my apologies. Gee, I had to leave the session like for a while. Need to fix the audio thing. So I'm back. So exactly, you're just back what I'm and saying. we can hear you properly, sir. Yeah. Yeah. So we need to be cautious and we need to be responsible as citizen. अपने आप को देखें, अपना घर ठीक रखें, अपने आप को सही रखें। देखिए खतरा आपको लोगों से नहीं, लोगों को आपसे भी खतरा है और आपसे ज्यादा खतरा है। So wear a mask, keep yourself at a distance, at a social distance. तो आप अगर खुद अपने आप को सेव कर लेंगे, तो आप समझे कम से कम आपने सोसाइटी का एक बंदा ठीक कर लिया, which is अच्छा, enough. जो अली यहाँ पे इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी की है कि कोविड को, पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि मुझे दूसरों से होगा, मतलब इस तरह से वो आपकी ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि आपसे दूसरों को होगा। Exactly. सो जब वो आपको करते हैं तो वो फिर आप, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी ज्यादा है लोगों के अंदर कि मेरे से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, कंपेयर टू दूसरी जगहों पे जहां पे होता है कि मैं ठीक हूं, मुझे नहीं परवाह बाकी की क्या है। तो एनीवे बहरहाल इन्होंने जो जो हम लोगों की बेसिकली आई वर्क हियर एज ए स्टाइलिस्ट, तो मैं तो मेरा तो पब्लिक के साथ जितना मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो वो जो हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग होती है, जो सेशन होता है, उसमें सबसे पहले यही बताया जाता है कि आपको नहीं पता कि आपको कोविड है, आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी हो सकता है। तो वो इस बेस के ऊपर वो पूरी हर जगह पे जो भी ट्रेनिंग होती है वो इस तरह से होती है, वो आपके माइंड में पहले से ये बात बताते हैं कि आपको कोविड है और आपकी वजह से दूसरों को होगा, ये नहीं कि दूसरों को आपको लग सकता है। एहसास बहुत जरूरी है हुमायूं, एहसास हमारे यहाँ बहुत कम है। हम लोग अगर देख रहे हो कि सड़क पार कर रहा हो ना, हम गाड़ी तेज कर लेते हैं, बजाय इसके कि गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लें, लेट द पर्सन क्रॉस द रोड। हम कोशिश करेंगे ये ना करें, तो क्यों ना करें, मतलब तुम्हारे बाप का क्या जाता है भाई, लेट हिम क्रॉस द रोड और लेट हर क्रॉस द रोड। हमारे यहाँ हम क्या कहते हैं, कोई गिर जाए तो उसका मजाक हंसा जाता है उस पर। आई डोंट नो, हम ऐसे थे नहीं, ऐसे पता नहीं क्यों हो गए। हम बड़ा एहसास वाला माशरा थे, हमारी फैमिली नॉर्म्स थी, बट हम अजीब हो गए हैं। हमारे अंदर ना अगले को तकलीफ में देख के हमें खुशी महसूस हो रही होती है। यदि गड्डी बच गई है, बहुत चंगा होया है, नवी ली ना, इन्हें पता नहीं कितना कमाए से पैसे, गड्डी बच गई, बहुत चंगा है। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं एक चीज जो मुझे विच वरीज मी अ लॉट, हुमायूं एंड सादिया, ट्रस्ट मी, एंड आई हैव सीन दिस बीइंग इन पाकिस्तान, that over the time we have become more sadist. We don't like people being happy. This is something very worrisome. हमारे यहाँ देखे फेस्टिवल्स खत्म हो गए, बसंत होती थी खत्म हो गई, कॉन्सर्ट खत्म हो गए। पाकिस्तान में कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी नहीं रही है। क्या करना है, लो जी आज खाना खा लिया, कितने गए सो खाना खान, कितने जा रहे हो खाना खान। यार सिर्फ एक काम है, खाना खाना, मतलब कोई और एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। न्यू ईयर नाइट यहाँ पर नहीं होती है। बसंत कितना प्यारा त्योहार था, पीपल। तो अली आप कब आ रहे हो लंदन? नहीं सर, अभी हम मिला नहीं, मुझे लग रहा है जो चीजें आप मिस कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कब आ रहे हैं आप लंदन? जस्ट मैं इंशाल्लाह ऑन एंड ऑफ जरूर आऊंगा, डेफिनेटली आई विल विजिट, बट आई लव माय कंट्री, आई लव बीइंग पार्ट ऑफ इट, बट आई फील सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच इज गोइंग ऑन। कि यार मेरा मुल्क, मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर ही तो मतलब इतना जिंदा दिल आने किलो का शहर था, इतना मजा आता था, वो यूज्ड टू एंजॉय फेस्टिवल्स, पता नहीं क्या क्या, हर मेला हम लोग एंजॉय कर रहे होते थे। पता नहीं क्या हो गया, किसकी नजर लगी हमारे मुल्क को। और हमें आप देखिए, टेलीविजन पे कोई अच्छी चीज हो जाए, हम उससे कंफ्यूज कर रहे होते हैं। जी अच्छा, अब मुझे आवाज, जी जी अब हम अच्छी चीज कर रहे हैं। अच्छा तो हम ओवर द पीरियड हम सेडिस्ट हो गए हैं। अब आई डोंट नो कि शायद बाकी लोग मुझसे एग्री करें या ना करें, बट वी हैव गॉन सेडिस्ट। आई थिंक ऑल्सो आई वुड से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया का इसमें है। अभी आपका खाना इंस्टाग्राम होना बहुत जरूरी है, उसकी पहले हम खाने से पहले अपनी पिक्चर्स खींच लेते हैं खाने की, तो फिर हम कहाँ कहाँ गए, हमने कहाँ कहाँ अपनी तस्वीरें खिंचाई। आई थिंक उन पे बात लग रही है जाके। हाँ, दिल पे, सबके दिल पे लग रही है, मेरे अपने भी दिल पे लग रही है, मैं भी लगा देती हूँ। बट यू नो आई थिंक इट्स ऑल्सो दिस रैट रेस एंड कॉम्पिटिशन दैट द सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड। तो आई थिंक इसकी वजह से भी ये सब चीजें, आई थिंक इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जेलसीज और ये सारा कुछ लोगों में ज्यादा हो रहा है कि अच्छा वो वहां गए, वो, बट दे नॉट रियली लुकिंग एट द रियलिटी ऑफ लाइफ के ये सब दिखावा है। हम सब लिविंग अ वर्चुअल लाइफ, हम एक वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, ट्रस्ट मी। एक we're living in a virtual world, मतलब मैं I'm trying to impress someone who is living 1,000 miles away from me,
and I don't know whether I get to meet her or him ever, but I'm trying to impress him or her, irrespective of the fact कि मेरे साथ बैठा हुआ बंदा जो है जिसके साथ मुझे I'm supposed to meet, उसको मैंने टाइम ही नहीं दिया। तो हमने अपनी सोशल लाइफ को इतना अजीब कर लिया है और इतना फजूल कर लिया है। ठीक है, आई डू एग्री कि सोशल मीडिया इज इम्पोर्टेंट, you need to have a presence, you need to have a visible presence on social media, but नहीं अली, टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं। आगे किस तरह का टाइम होगा, क्या टेक्नोलॉजीज होंगी, किस तरह से हम जिंदगी गुजारेंगे, हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने वो टाइम देखा है जब ये चीजें नहीं थी, तो इसलिए हम अगर उस टाइम को इस टाइम के साथ कंपेयर करें, यस हम कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो जनरेशन इस टाइम के अंदर आई है और वो जो चीजें देख रही है, उसको अगर हम अपनी पिछले टाइम में ले जाएं तो उससे रिलेट नहीं करेंगे। हाँ, जो वो बड़े होंगे उनकी अगली जनरेशन आएगी, तो मेरे ख्याल में टाइम हर टाइम एक सा ही होता है। वो टेक्नोलॉजी और फिर जो माइंड आपका, जिस तरह से आप चीजें देख रहे होते हो उसी तरह से आप चीजें बिल्ड कर रहे हो तो माइंड के अंदर। सो मेरे ख्याल में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। अपने बड़े बूढ़ों को कहते थे यार ये क्या बातें कर रहा है यार, ठीक है। आज कुछ उससे देखिए, आप और हम तीनों जो सब बैठे हैं, हमारा 80s का बचपन है, 90s की हमारी वो है लड़कपन है, टीनेज है हमारी, ठीक है। हमने वो भी देखा है, हमने डायल वाला फोन भी देखा है, वो घुमाने वाला फोन भी देखा है, हमने स्मार्टफोन भी हम देख रहे हैं। हम शायद बिल्कुल डिटैच ना हो पाए अपने 90s से, हमें कहीं ना कहीं वो याद आएगा और हम कहीं ना कहीं उसको याद करेंगे, और वहां से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली करेंगे। पीपल हु बोर्न आफ्टर 2000, उनको नहीं पता कि वो डायल वाला फोन क्या होता है, इनफैक्ट उनको वो भी नहीं पता कि 3310 क्या होता है, उनको नहीं पता होगा इस चीज का। तो हम चाह के भी हम हाइब्रिड रहेंगे, हम चाह के भी उधर नहीं जा सकते। हम ये भी नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी को फरामोश कर दें कि जी नहीं हमने तो 90 की दहाई में जीना है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यू एंड अस पीपल जो हु आर नाउ बिटवीन 30 एंड 40 की एज में, जो इस वक्त जो लोग हैं ना, हम वो लोग हैं कि जो हाइब्रिड किस्म की लाइफ गुजार रहे होंगे, आधे उधर होंगे, स्टक होंगे 20 years बैक, साथ में ही भी लेके चल रहे होंगे। आई थिंक इट्स फाइन, दिस इज हाउ। अच्छा, अब थोड़ा से सॉफ्ट नोट पे आ जाते हैं। थोड़ा सा आपके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताएं कि माशाल्लाह से आपकी शादी हुई है, ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, ये किस तरह से हुई? Partly love. It was partially love. It was my choice. I would say it was my choice. But वो जो एक होता है courtship period होता है आपका before you get married, और वो नहीं हुआ था। I liked her. I proposed her. She agreed. I asked my family to talk to their family, and this is Pakistan में होता है। They mutually agreed to, ठीक है यार, लड़का भी अच्छा लड़की भी अच्छी है, you know, go ahead. This is how. जी सादिया। It's amazing. Okay, अब मैं ये देख रही हूँ कि we're just kind of running short on time. So, Ali, it's been really lovely talking to you. आप कोई final message देना चाहते हैं सब लोगों को जो लोग देख रहे हैं आज इस प्रोग्राम को? मुझे जो सबसे ज्यादा चीज जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, वो है खुशियाँ। एक चीज के, एक तो हर हाल में खुश रहें, ट्रस्ट मी, आप बहुत से बहुत बेहतर होते हैं। और दूसरा ये, खुश रहना सीखिए, तनकीद मत किया करें। हमारा काम है तनकीद करना, हमें इसके पैसे मिलते हैं भाई, हमें करने दो, हम मीडिया वालों को। तुम मत करो, तुम एंजॉय करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इससे। तो लेट अस डू आवर। ओके, आई थिंक थोड़ा सा स्टिल हो गया। हमारी आप अपना माइक ऑन करें। बहुत जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था। और टू बी ऑनेस्ट, हम लोग इसी में ही टाइम किल कर देते हैं। हम दूसरों को ऑब्जर्व करना, उनकी खामियां और अच्छाइयों में ही टाइम जाया कर देते हैं, और हम अपनी जो एक खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, उसको वेस्ट कर देते हैं। सारा ये तुम्हारे लिए मैसेज है। Okay. She was watching all along. I think she's still with us. So, Ali, thank you so much for your time. My pleasure. It was my honor. Thank you, Sadia. Thank you, Maya. So nice to meet you. Thank you, Ali. Thank you so very much. Okay, see you. Allah Hafiz. Okay, everybody, thank you so much for joining today. और आपने अभी हमारा ये लाइव देखा। नेक्स्ट हमारा लाइव आज शाम को 6:30 बजे होगा, उसका भी मैं एक अभी रिमाइंडर डाल दूंगी। वो भी आपने जरूर ज्वाइन करना है उस लाइव में। और बिग थैंक्स टू गेस्ट फॉर टुडे, आवर नॉमिनी एक्चुअली, जो कि जर्नलिस्ट की कैटेगरी में नॉमिनेटेड हैं, सैयद अली हैदर। और थैंक यू सो मच हुमायूं एज वेल फॉर ज्वाइनिंग, ही इज द पैनल जज। और आप सबका भी, और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अ फ्यू आवर्स विद अनदर लाइव। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।